Hello dear viewers, in my today's lecture I'll be explaining you the calculation of analysis of covariance. The numerical that I'm taking of ANCOVA is, I'll briefly explain what this experimental numerical is all about. See, there is an experimenter who wants to study the effect, दो types of reinforcement का effect वो देखना चाहता है on maze learning task. For this purpose, he will be taking rats as a subject and जो rats हैं वो rats को groups में divide करेगा. One will be the control group and other will be the experimental group. So control group जो होता है उसमें वो कोई reinforcement नहीं देगा and experimental group में वो reinforcement देगा. He has 3 groups of rats with him. 3 groups of rats को वो control group में and 2 experimental groups में divide करेगा. So experimental group number 1 and 2. जो एक्सपेरिमेंटर है he is not having any choice to assign the subjects randomly into these groups. Reason being that कि ये intact group of rats हैं, जैसे ही groups हैं उसको वैसे ही उन groups को treat करना पड़ेगा. ये intact groups का जो concept है I've already explained in the introduction of ANCOVA. Now these groups can be randomly assigned to these 3 conditions. इन 3 groups में वो randomly assign कर सकता है treatments को, जैसे किस ग्रुप को वो कंट्रोल ग्रुप बनाना चाहता है, कौन से ग्रुप्स ऑफ रैट्स को वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स बनाना चाहता है. सो जब हमने अजम्पशंस किए थे एनकोवा के, वी टॉक्ड अबाउट कि इन एनकोवा, यूजिंग एनकोवा हम पहले एक्स कोवेरिएंट मेजर्स लेते हैं. सो टू ऑब्टेन मेजर्स ऑन कोवेरिएंट एक्स, जो सब्जेक्ट्स हैं उस मेज में एक्सपेरिमेंटर रखता है एंड he sees कि हाँ जी how the animals are performing. So the performance is measured in terms of number of errors. So this is ये number of errors जो है, this is the measure on covariate x. After obtaining the x measures, same maze पर the rats are allowed to run. But this time जो control group की rats हैं उनको कोई reinforcement पहले भी नहीं मिला था, अब भी नहीं मिलेगा. But जो experimental group की जो rats हैं उनको reinforcement दिया जाएगा and then उनकी performance देखी जाएगी in terms of number of errors. Now this is the data. The data has been tabulated in this way. This is the layout of the table for ANCOVA. आप देखिए यहाँ पे serial number है, मतलब 5 rats हैं तीनों groups में. Clear? So n is 5. ये 3 ग्रुप्स आ गए, कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नंबर 2. हर एक ग्रुप में x मेजर एंड y मेजर लिया गया है. सो ये x मेजर पहले लिए तीनों ग्रुप्स के, फिर y मेजर्स लिए. ना सेम जो न्यूमेरिकल है आई हैव रिटन इट ओवर हियर. आफ्टर मेकिंग दिस टेबल, ये आप हाइपोथेटिकली भी खुद से डेटा बना सकते हैं. इन दिस फॉर्म इट कैन बी मेड. तो नेक्स्ट रो मैंने ऐड किया है, दैट इज ऑफ द समेशन, मतलब हर एक कॉलम का टोटल किया गया है. सो एक्स ऑब्जर्वेशंस का कितना टोटल है, सो 5 + 4 + 4 + 5 + 6. सिमिलरली कंट्रोल ग्रुप के वाई ऑब्जर्वेशंस का टोटल किया गया है. लाइकवाइज बाकी दोनों ग्रुप्स की एक्स एंड वाई ऑब्जर्वेशंस का टोटल किया गया है. नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट रो में मीन कैलकुलेट किया है. सो मीन मैं आपको कंट्रोल ग्रुप के एक्स का बता देती हूँ कैसे निकाला है. सेम थिंग, it is summation x, that is 24 divided by n. n is the number of observations, number of subjects. तो यहाँ पर 5 subjects हैं. So 24 divided by 5 will give you a mean of 4.8. Similarly, हर एक column का mean भी निकाला है. Next जो आप calculation करेंगे will be of grand totals. ये grand totals हम correction term के लिए calculate करते हैं. तो इस बार जो करेक्शन जो ग्रैंड टोटल्स हम कैलकुलेट करेंगे, x की अलग एंड y की अलग करेंगे. सो ग्रैंड टोटल ऑफ x मतलब तीनों ग्रुप्स में जो x ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ऐड किया गया है. सो हमने यहाँ पे सम अप किया हुआ है नीचे. सो x ऑब्जर्वेशन ऑफ कंट्रोल ग्रुप 24 प्लस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स की 13 + 18. इट गिव्स यू अ ग्रैंड टोटल ऑफ x इज 55. सिमिलरली y ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया दिस वे, 21 + 9 + 11. इट गिव्स यू अ टोटल ऑफ 41. Now what is this GXY? GXY is grand total of the sum of the products. मतलब तीनों ग्रुप्स की X and Y observations को multiply किया गया है and then उसको add किया है. Clear? So X into Y, summation of X into Y. So it is 5 into 4, 4 into 4 करेंगे, then 4 into 5 करेंगे. Likewise सारी observations को ऐसे आप multiply करेंगे, then उसको add करेंगे. कैसे? 5 into 4 plus 4 into 4 plus 4 into 5. Likewise the last set of observation, that is 2 into 1. ऐसे करेंगे तो आपके पास ग्रैंड टोटल ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएगा, दैट इज 170. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज ANOVA ऑफ एक्स स्कोर्स.
इसी तरीके से सेकंड स्टेप होगा, दैट इज अनोवा ऑफ वाई स्कोर्स। सो दोनों स्कोर्स का अलग अलग से अनोवा निकाला जाएगा। सो अनोवा निकालने के लिए हम तीन वेरिएशंस लेते हैं। वी वेरी वेल नो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स एंड विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स। तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्कोर्स का हम निकाल रहे हैं। सो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, अब्रीविएशन इज दिस, सम ऑफ स्क्वायर्स का एस एस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एक्स, टी इज फॉर द टोटल। तो दिस वे अब्रीविएशन की गई है। सो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, आप द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड जैसे हमने पहले अनोवा में की थी। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे एंड माइनस करेंगे फ्रॉम द करेक्शन टर्म। पर यहाँ पर हम अनोवा सिर्फ एक्स स्कोर्स का कर रहे हैं। सो तीनों ग्रुप्स के जो एक्स स्कोर्स है उनको स्क्वायर करेंगे, देन ऐड करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म मैं सबसे पहले आपको सिखा देती हूँ। सो करेक्शन टर्म इज ओनली फॉर द एक्स स्कोर्स। सो एक्स स्कोर्स का टोटल क्या है? दिस इज द ग्रैंड टोटल ऑफ द एक्स, दैट इज 55. So 55 square divided by total number of observations, that is n into k. N is the number of subjects, that is 5, and k is the number of groups, that is 3. So 5 into 3 is 15. इस तरीके से आपके पास करेक्शन टर्म आ जाएगी। ये करेक्शन टर्म निकली सा। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स के लिए हमने हर एक x की जो ऑब्जर्वेशन है उसको स्क्वायर किया है। सो दिस वे। सो कंट्रोल ग्रुप की जो x ऑब्जर्वेशन है इनको स्क्वायर करना है। 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सो ऑन till the last group, that is experimental group number 2, उसकी x observations को हम स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब प्लस 2 स्क्वायर। ठीक। सो इस तरीके से आपका टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स। सो बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे है? तीनों ग्रुप्स की x ऑब्जर्वेशंस का टोटल देखेंगे। सो दिस इज द टोटल x, ये या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 plus 13 square divided by 5 plus 18 square divided by 5 minus the correction term। इस तरीके से between group sum of squares निकालते हैं। Next is within group sum of squares, इसका abbreviation भी आपको समझ में आ जाएगा। sum of squares का SS, sum of squares of x, within का W। So formula is total sum of squares minus between group sum of squares। ये सारे हमने sum of squares calculate किए हुए हैं। Substitute the values and you can find out the answer for within group sum of squares। नेक्स्ट इज द समरी टेबल फिर हम बनाएंगे ऑफ अनोवा ऑफ एक्स स्कोर्स। तो यहाँ पे वेरिएशंस क्या ली हुई है हमने? बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप्स। तो विद इन ग्रुप्स है, दैट इज द एरर। तो इसका सबसे पहले हमने सम ऑफ स्क्वायर निकाला, वो हमने यहाँ फिल कर दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू व्हेन आई टुक अ लेक्चर ऑन द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकोवा। उसमें हमने पार्टीशनिंग ऑफ टोटल वेरिएशन की है अलॉन्ग विद द फॉर्मूलाज फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये फॉर्मूलाज है, k इज बेसिकली द नंबर ऑफ ग्रुप्स, n इज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। इस तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। मीन सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे? सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस तरीके से दोनों मीन सम ऑफ स्क्वायर्स आ गए। नेक्स्ट आपका आ गया f। सो f इज द रेशियो बिटवीन मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बिटवीन ग्रुप्स एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एरर ग्रुप। सो 6.06 डिवाइडेड बाय 0.93, इट गिव्स यू एन f रेशियो ऑफ 6.51। f की जो रेशियो है उसका सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए हम टेबल b रेफर करते हैं। तो I am not referring table B over here, showing how to refer table B because we've already done this thing when we previously did the ANOVAs. Clear? So F.95 is the table value at 0.05 level. कौन सी degree of freedom पे table value देखनी है हमने? 2 and 12. तो table value at 0.05 level is 3.80 and it has been found to be significant. F is greater than the table value. So obviously F significant आया है हमारा। हमने I've marked one asterisk over here, which means कि जो आपकी F value है, it is significant only at 0.05 level. So F significant आया of X scores. It means तीनों groups का जो X scores हैं, they differ significantly from each other. Similarly, हम ANOVA of Y scores भी calculate करेंगे. Same procedure है, but यहाँ पर हम सिर्फ refer करेंगे to the scores of Y only. So total sum of squares निकालेंगे, between group sum of squares निकालेंगे and within group sum of squares निकालेंगे। So यहाँ पर total sum of squares निकालने के लिए of y scores, जितनी भी y observations है तीनों ग्रुप्स की उनको स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे एंड माइनस करेंगे फ्रॉम द करेक्शन टर्म। अब करेक्शन टर्म यहाँ पे सिर्फ y की है, तो y का ग्रैंड टोटल कितना है? 41 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15। क्लियर? तो इस तरीके से आप निकालेंगे। इसका भी हम समरी टेबल बनाएंगे। सो सेम तरीका है समरी टेबल बनाने का। आई एम ओनली डिस्कसिंग f ओवर हियर। तो यहाँ पर जो y स्कोर्स का f आया है दैट इज 11.8। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे चेक करेंगे? टेबल वैल्यू 2 and 12 पे।
क्लियर. सो जो टेबल वैल्यू आई है एट 0.01 लेवल, सी F.99 मीन्स टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू या P वैल्यू एट 0.01 लेवल विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 and 12 is coming out to be 6.93. नाउ जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है f की, दैट इज फार ग्रेटर देन 6.93. सो f इज सिग्निफिकेंट एट बोथ द लेवल्स, 0.01 लेवल एंड 0.05 लेवल. तो अगर f y स्कोर्स का सिग्निफिकेंट आया है, सो इट मींस कि तीनों ग्रुप्स के जो x स्कोर्स हैं, दे आर डिफरिंग सिग्निफिकेंटली फ्रॉम ईच अदर. द नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस. सी अनोवा में हम सम ऑफ स्क्वायर्स निकालते हैं. एनकोवा के लिए या एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस के लिए हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं. सो दिस इज टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालेंगे, फिर बिटवीन निकालेंगे एंड देन विद इन निकालेंगे. ठीक है जी. सो टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट्स का अब्रीविएशन क्या है? SP. सो SP इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टोटल. T सम ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑफ x एंड y, x into y. सो SP x into y T भी लिख सकते हैं आप. तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे निकालेंगे? सी सम ऑफ प्रोडक्ट्स हमने स्टार्टिंग में जब ग्रैंड टोटल निकाला था, ग्रैंड टोटल ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्रैंड टोटल XY, तो वही हमने किया हुआ है F 5 into 4 plus 4 into 4 till the last set of observations, that is 2 into 1 minus the correction term for the sum of products. So correction term यहाँ पे कैसे निकालेंगे? हम दोनों x and y की ग्रैंड टोटल्स लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज 15. तो यहाँ पर 55 क्या है? दैट इज द टोटल ऑफ x, 41 इज द टोटल ऑफ y स्कोर. सो 55 into 41 डिवाइडेड बाय 15. तो इस तरीके से आपके पास टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट्स की वैल्यू आ जाएगी. फिर नेक्स्ट स्टेप है बिटवीन ग्रुप्स का सम ऑफ प्रोडक्ट्स. सो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ B, यहाँ पे एब्रीविएशन इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. तो ये कैसे निकालेंगे? सी 20, I'll show you the table. आप फर्स्ट ग्रुप देखिए, कंट्रोल ग्रुप का x एंड y ऑब्जर्वेशंस के टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 24 into 21 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 13 into 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 18 into 11 डिवाइडेड बाय 5. क्लियर. एंड उसको माइनस करेंगे फ्रॉम द करेक्शन टर्म जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, इस तरीके से.